हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे हम हर एक विषय पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। In our ecosystem, vegetation and wildlife are valuable resources. We all know that plants and provide us with the timber, give us shelter to man and animals, produce the oxygen we are breathing, prevent us erosion and natural calamities such as the flood, high-speed winds, and help in a strong of underground water. Give us a fruits, nut, latex, turpentine and oil, gum, medicinal plant, and also the paper that is sustainable for our studies. These are some of the innumerable uses of plants. Wildlife includes animal, birds, insect, reptile, and well as aquatic life form. They provide us a milk, meat, hairs, and wool. Insect like a bee provide as a honey, help in a pollination of flowers, and have an important role to play or decomposer in the ecosystem. The bird feeds on insect and act as a decompose as well. Vulture due to the ability of feed on the dead livestock is a scavengers and considered as a vital cleaners of the environment. There is the most important vulture. The vulture is the beetle is a cleanser of environment, but there are dangerous here. So life is a form, big or small, all the integrate to the maintenance of balance in the ecosystem. The next year, natural vegetation in India. As in any another part of the world, natural vegetation of India is also determined by the climate. A physiographics and soil factor. If we look at the figure, we find that is based on factor of temperature, rainfall, and topographical condition. India has a diverse vegetation patterns as summarized below. The dense natural vegetation found in the northeastern region and Western Ghat, Andaman Nicobar also. The northern plain and northern western regions support a very scanty vegetation and is under cultivation. The Deccan region is full of scraps and mixed or discussion forest. Natural vegetation of India can be broadly divided into the following groups. The first are tropical evergreen forest, tropical discussion forest, and thorn forest, tidal forest, and Himalayan forest. There is a 5 types has divided here. The first of here, tropical evergreen forest. This is important. Tropical evergreen forest. This is the most important for the exam view. Tree is this forest remain green all the year round as the climate of regions in the warm, and we are throughout the year. The leaves of these trees do not fall in any particular season. Here they are evergreen. There is a evergreen. The leaves of these trees do not fall in any particular season. These do not fall down. There is a evergreen. And these forests are found in the area having more than 200 centimeter of rainfall with a short dry season. There is a 200 centimeter of rainfall with a short dry season. The trees reach a height up to the 60 meter or even more. The height up to the 60 meter or even more. It has a dense and mixed vegetation, all kind of including trees, shrubs, clambers, creepers, epiphytes, and the ferns, given it is the multi-layered structure. This is important. It has a dense and mixed vegetation of all kind, including tree, shrub, clamber, creepers. There is more on. And here there is the economical exploitation is not available.
The number of species tree is very large in a small area. The rosewood, ebonies, mahogany, rubber, jackboots, and bamboo are the important species of tree found in the tropical evergreen forest. There is the most important here. The rosewood, ebonies, mahogany, rubbers, jackboots, and bamboo are important species of trees found in the tropical evergreen forest. In India, this type of vegetation found in the area of heavy rainfall in a western Ghat, upper part of Assam, and island of the Lakshadweep, Andaman and Nicobar. There is the most important area here. And the hardwoods from this forest is used for the furniture, handicraft, etc. They prevent of landslide and soil erosion. There is a most important topic here. The next year, topical discussion forest. There's a most important here. Tropical discusses forest here. Trees, this forests, shaded there is a leaves once in the year. Shaded, there leaves once in a year. And that's why that is called topical discussion forest. And these are most best period forest of India. These forests are found in the area receiving annual rainfall between 75 to 200 centimeter. 75 to 200 centimeter. As far as the physical distribution of these types of forest is concerned, they are found in the entire country and excluding some part of Deccan Plateau. Northeastern region and Western Ghat and Eastern Coast, this forest has been to the subject to extensive clearness by their man for the purpose of cultivation. Still some patches of natural vegetation are found along the foot hills of Himalaya, hill region of peninsula and central part of the country. On the basis of the ability of rainfall, these forests are further divided into the moisture discusses and dry discussion. There is the most important here, topical discusses forest here. And first of all here, the moisture discussion forest. Moisture discussion forests are found in the area of rainfall between 100 to 200 centimeter. Rainfall between 100 to 200 centimeter. And these are distributed mainly in the eastern part of the country. Northern eastern state along the foothills of Himalayas, Jharkhand, Orissa and Chhattisgarh and eastern slope of Western Ghat. Thick bamboos, sal, silesium and sand boots and khair, kusum, Arjun, Mahalau, Jano and there is a mulberry are the important species of tree found in this forest. There is the most important here. And next here, the dry discussion forest. The dry discussion forest here are the separate in their area receive annual rainfall between 75 to 100 centimeter annually. There is only 75 to 100 centimeter annually rainfall here. And these forests are found in the entire part of the Peninsula Plateaus and plain of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Bihar. Tree species of this forest are teak, sal, peepal and neem. This is important. The next here, Thorns forest. Thorns forest here, the area with a less than 75 centimeter of annual rainfall. There is a less than 75 centimeter annual rainfall are characterized by the natural vegetation of thorn trees and bushes. Climate of this part is mainly dry with occasionally is a wet periods. So it does not be support dense vegetation. They are mainly found in north western India, interior part of the peninsular India including semi arid area of Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, Uttar Pradesh, Haryana, Karnataka and Andhra Pradesh and Maharashtra. Vegetation of this forest is widely distributed in the form of small trees and bushes with the deep roots. The stems are a salient of the conserve of water.
Leaves are mostly thick and small, minimize evaporation. Acacia and Ebrophias and Babul, cactus and Care, jet and plums are common variety of tree in these types of vegetation. There is a most important here that Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh even found these tribes, and there is a mainly babul, cactus, khair, dates, and plums. This is the most important tree found in this area. So here comes the most important map on your screen. There's the most important for the exam view. There is examiner goes to the many types of question on this map regarding. There's the most important map for the exam view for the all class here. There are Indian natural vegetation. The natural vegetation here, first of all here, tidal forest. Tidal forest is the found is the only one sea area. There is a sea area on your screen there show here. But tropical evergreen forest is a show on there Arunachal Pradesh side, Bengal, Kerala, and there's on side. And tropical discussion forest found to the almost all of India. There is Uttar Pradesh, Maharashtra, there is the Bihar, Bengals. There's the most important here. And thorns forest is found. There is only here important side. There is a Gujarat, the Rajasthan. There's a main area is found here. And there is a Himalaya vegetation. Himalaya vegetation, the name is Himalaya vegetation. The found in the Himalaya area here. On your screen, there is Himalaya side. There is a found a vegetation of Himalayan vegetation. There is a most important map on your screen. The next topic is the most important here, tidal forest. The tidal forest is the most important. As suggested by the name, these forests are found in the tidal creeks and snaps influenced by the tidals and wetland topographs. It's important. There is a name is here show, and this forest found the suggestion here a tidal. Tidal is a wetland, the topography, and this area is created by their mud, slate, and water accumulated on their surface. The root and branches of these trees are submerged under their water specific period of time. This is important. The root and branches of these trees are submerged under the water for a specific period of time. They are also called mangrove forest. There is also called here mangrove forest. I repeat again, the tidal forest is also called mangrove forest. The mangroves are particularly evergreen with the thick leathery leaves. Such types of forests are found in the deltas of Sundarban. Deltas of Sundarban, Mahan, Mahanadis and Godavari, Krishna, Kaveri rivers, and in the Andaman Nicobar Island also. Mangrove Sundari is there is a common tree in the Sundarban. The mangroves or sundaris is the common tree in the Sundarban, while the plum, coconut, keora, and agar are the other important species of tidal forest. It is interesting to know that the types of forests have remained away from the large scale of commercially exploitation, and these forests are located along the coasts. They provide protection against the cyclone. You know that, I repeat again, they provide a protection against cyclone. There is a most important tidal forest. Yeah, there is called a mangrove forest. The next year, Himalayan forest. That's the most important Himalayan forest. As evidenced by the name, that these forests are mainly found in the mountainous region of the Himalaya. I already show in a map. There's the most important here. The evidence as a name, the forests are mainly found here, mountains region of Himalaya, and this decrease in the temperature and increasing altitude lead to variety types of vegetation. And depending upon two factors like a slope of the mountain and sun rays receive a side. The ecosystem is highly fragile as a Himalayan forest have been exploited in a many ways in the recent decades. The area with the relative low altitudes up to the 100 meters and warm climate and good amount of rainfall are characterized by the dense vegetation cover. And this area look like a tropical forest. Sal
and bamboo are the main species in this area. You know that there is an important notable point here. The area look like a tropical forest. Is the sal and bamboo are the main species in this area. Between the evolution of the 1,000 to 2,000 meter evergreen bodied leaves, oka and is the chestnut are the common species found in this forest. In eastern Himalaya, the same evolution is occupied by the subtropical pine forest. Chin is a common species found in this part. Most temperate forests in the Himalayas are found between to the evolutions 1,500 to 3,500 meter, which receive annual rainfall in the range of 100 to 250 centimeter. There is a rainfall is annually. There is a range of 100 to 250 centimeter. And the hair, ochre, ladin, chestnut, cedar, and silver fir species and rhododendrons and the deodar are the main species. The deodar is the main species found in this part of Himalaya. They has been to the widely exploited from their timber. Alpine forest found in the Himalaya at the height of between 3,000 to 800 meters with a large and extensive is a highland as a grassland and prairies is a distributed is a pine, birch, silver, fir and rhododendron trees. They are important here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। देखिए प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन जो पर्यावरण के दो प्रमुख घटक हैं, ये दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देखते हैं इनकी क्या महत्वता है और क्यों जरूरी है। हमारे परितंत्र में वनस्पति और वन्य जीवन मूल्यवान संसाधन है मूल्यवान संसाधन, लेकिन आज का आधुनिक युग में मानव नहीं समझ पाए हैं कि ये बहुत ही मूल्यवान संसाधन है। हम सभी जानते हैं कि पौधे हमें लकड़ियाँ प्रदान करते हैं, पौधे हमें लकड़ियाँ प्रदान करते हैं, मानव और जानवरों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन कर देते हैं जो हमारी सांस लेने में काफ़ी मदद करती है। अगर पेड़ पौधे नहीं तो हम सांस कहाँ से ले सकते हैं, संभव ही नहीं है। मिट्टी का कटाव रोकना प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, तेज पवनें रोके और भूमिगत पानी के भंडार में मदद करने के लिए हमें फल देना, गरीदार फल, तरपीन का तेल, गोंद, औषधि पौधे और कागज भी हमारे अध्ययन के लिए आवश्यक होते हैं। तो पेड़ पौधों की इतनी महत्ता है जिसका वर्णन शायद करना यहाँ पर कम पड़ जाएगा। इन कुछ पौधों का असंख्य उपयोग होता है और वन्य जीवन के अंतर्गत पशु, पक्षी, कीड़े स्वरूप के रूप में जलीय जीवन शामिल है। वे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्रदान करते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इवन के जो कीड़े मकोड़े हैं उनका भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। अब देख लीजिए मक्खियों हमें फूलों के परागण की सहायता में शहद प्रदान करती हैं। मक्खियाँ जो होती है मधुमक्खी तो आपको पता ही होगा, ये मक्खियाँ जो होती हैं मधुमक्खियाँ हमें फूलों के परागण की सहायता से शहद प्रदान करती हैं और पारिस्थितिक तंत्र में अपघटन के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यानी पारितंत्र में अपघटन के रूप में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। पक्षियों का भोजन कीड़े हैं और अपघटन के रूप में अच्छी तरह से अपना कार्य करते हैं। अपने मृत पशुओं का भोजन करने की क्षमता के कारण गिद्ध एक बेहतर और वातावरण की एक महत्वपूर्ण सफाई करने वाला माना जाता है। अब सोचिए ये बात यहाँ पर लिखी हुई है कि गिद्ध जो है एक महत्वपूर्ण सफाई करने वाला माना जाता है, लेकिन आज इंसानों के गतिविधियों के कारण आपको कहीं गिद्ध नज़र नहीं आएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कारण क्या है? इंसानों के बदलता रवैया। इंसानों ने जो आज आधुनिकता के आड़ में जो है सब कुछ नष्ट कर दिया है, इस कारण गिद्ध भी आज विलुप्त हो गया है। हम भी देखते थे जब हम बच्चे थे, कहीं भी कोई जीव जंतु मरता था, लाखों करोड़ों में जो गिद्ध आते थे और चंद सेकेंडों में जो है किसी जानवर को जो है हड्डी सिर्फ छोड़ जाते थे। लेकिन आज के समय देखिए कोई जीव जंतु मर जाता है तो रोडों के किनारे फेंका हुआ होता है, जंगलों में फेंका हुआ होता है, सड़ रहा होता है, गल रहा होता है, लेकिन एक भी गिद्ध नज़र नहीं आ रहा होता है। आखिर ये गिद्ध का नष्ट होने का कारण कौन है? क्या सरकार का बढ़ता हुआ लालच या आम इंसानों की गलती? किसकी गलती है?
जिसके कारण गिद्ध जो है विलुप्त हो चुका है। शायद कहीं आपको चिड़ियाघर में कहीं नज़र आ जाए तो बड़ी बात है। थोड़ा सा देखा जाए तो राजस्थान के साइड भी गिद्ध नज़र आ जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। बट आज जो पहले के समय में हर जगह पर नज़र आती थी, आज शायद नहीं आती है, क्योंकि कहा जाता है गिद्ध का जो है 100 योजन का नज़र होता है, वो 100 योजन दूर तक भी देख सकता है। इसलिए कहीं जीव जंतु मरता था, बहुत ही आसानी से वो देख लेता था और उसकी भक्षण करके पर्यावरण को जो है साफ सुथरा और हमारे लिए स्वच्छ बना के चला जाता था। लेकिन आज गिद्ध जो है विलुप्त होने के कगार पे आ चुका है और विलुप्त भी हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज तो सिर्फ ये चिड़ियाघर में ही नज़र आते हैं, बाकी बाहर तो ये नज़र आते ही नहीं है। सोचिए, विचार कीजिए, अगर ऐसा ही होता रहा तो हम ऐसे बहुत से जीव जंतु और पेड़ पौधे से हाथ धो देंगे जो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण था। इवन कि आपको पता है कि चंदन की लकड़ी कितनी महत्वपूर्ण थी और आज के समय में वो भी विलुप्त होने के कगार पे आ चुका है, लेकिन सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा रही है। इस पर फिल्म जो बनाई गई वो मिलेनियम कमा लिया। चंदन के तस्करी वाला फिल्म तो आपने देखा ही होगा, जिसका एक्शन भी आप लोगों को हर समय याद रहता है। उसने तो पूरा करोड़ रुपया कमा लिया, लेकिन सरकार का आंख नहीं खोला कि ये चंदन अब हमें विलुप्त होने के कगार पे आ गए हैं, क्योंकि लोगों ने इसको इतने बेदर्दी से काटा है कि पेड़ पौधे भी कर्रा उठे हैं कि इतनी तो कभी हमने देखा ही नहीं लोगों की लालच, जितनी लालच आज दिखा रहे हैं। तो आप लोग भी फिल्म में देखे होंगे, हंसे होंगे और पुष्पा का नाम लिए होंगे, लेकिन आपने इस गंभीर मुद्दे को नहीं समझा कि आखिर इसमें चंदन की बातों पर इतना जोर क्यों दिया गया और लोग इसी तरह से जो है चंदन को विलुप्त करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो आपने तो सिर्फ फिल्म का मज़ा उठाया, वास्तविकता को आपने कभी नज़र नहीं दिया। सभी जीव छोटे या बड़े पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब यदि हम पहले पॉइंट के अंतर्गत बात करें तो भारत में प्राकृतिक वनस्पति, तो यहाँ पर हम वनस्पति के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और ये वनस्पति बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है और संक्षिप्त भी है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद करके एग्ज़ाम के लिए अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि 9th में भी ये क्वेश्चन कई जगहों पर पूछा जाता है CBSE वाले बुकों में। तो ये काफ़ी 9th क्लास के बच्चों के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, तो वो नोट कर ले और कौन कौन से उसको अच्छे से याद कर ले तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो आप बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। आगे देखते हैं हम इसके टॉपिक के रिगार्डिंग। देखा जाए तो संसार के किसी अन्य भागों में के रूप में भारत की प्राकृतिक वनस्पति का निर्धारण भी जलवायु, भौगोलिक और मिट्टी कारकों द्वारा ही होता है। ये तो आपको भी पता है कि भारत की प्राकृतिक वनस्पति और निर्धारण भी जलवायु और भौगोलिक और मिट्टी कारकों द्वारा ही संभव है। तापमान, वर्षा और स्तरीकृति परिस्थितियों के कारण और कारकों के आधार पर भारत की विविध वनस्पतियाँ के वितरण नीचे संक्षिप्त में वर्णित है। घने प्राकृतिक वनस्पति उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार में पाया जाता है। उत्तरी मैदानों, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में बहुत कम वनस्पतियां हैं और अधिकांश क्षेत्र पर खेती की जाती है। दक्कन क्षेत्र में पूर्ण रूप से कांटेदार झाड़ियां और पनपती जंगल से भी भरा हुआ होता है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति छोटे मोटे तौर पर निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें इसको प्राकृतिक वनस्पति को 205 भागों में बांटा गया है। पहला यही आता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय पनपती वन, उसके बाद कटीले वन और ज्वारीय वन और उसके पश्चात हिमालय वन। कहते जंगल भी मानवकृत होते हैं, यह शहरी क्षेत्र में विकसित किया जा सकता है। हालांकि इस पाठ में केवल प्राकृतिक वनों को ही प्राकृतिक के रूप में चर्चा की गई है, यानी देखा जाए तो हम सिर्फ प्राकृतिक के ही विषय में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम मानव द्वारा भी निर्मित होती सकती है, लेकिन हमने सिर्फ उन्हीं टॉपिक को निर्धारित करना है जो प्राकृतिक ने स्वयं बनाए हैं। तो पहला टॉपिक तो हमारे समक्ष यही आता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वन क्षेत्र में पूरे साल नम और गर्म जलवायु के कारण पेड़ हरे बने रहते हैं, यानी यहाँ पर जो है पौधों को विकास के लिए वो सारे जलवायु मिल जाते हैं, जो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इन पौधों की पत्तियाँ किसी विशेष मौसम में नहीं गिरती। अब देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि इन पेड़ों की पत्तियाँ जो है किसी विशेष मौसम में नहीं गिरती। जैसे हमारे देखा जाए भारत के किसी कई क्षेत्रों में
ठीक है। अगर देखा जाए तो शहरी क्षेत्र में देखोगे तो जैसे ही पतझड़ आती है सारे पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के क्षेत्रों में कहते हैं साल में किसी भी समय जो है मौसम में पत्तियां नहीं गिरती है, इसलिए इसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के रूप में जाना जाता है। इसलिए ये सदाबहार वन कहलाते हैं। और यह वन एक छोटी शुष्क ऋतु के साथ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी देखा जाए तो यहाँ पर वर्षा की मात्रा जो है 200 से ऊपर रहती है। और पेड़ जो है 60 मीटर या अधिक ऊंचाई तक पहुँच जाते हैं। यानी यहाँ की साइड के पेड़ देखोगे तो 60 मीटर से भी ऊंचे होते हैं। इन घने वनों में सभी प्रकार के मिश्रित वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, यानी हर प्रकार के वनस्पतियाँ जो है यहाँ पर पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत पेड़, झाड़ियाँ, लताएँ, जमीन पर फैलने वाले पौधे और फल जैसे बहुपरतीय संरचना वाले होते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इन वनों को अधिक आर्थिक उपयोग स्वीकार नहीं है, यानी इन वनों का आर्थिक उपयोग स्वीकार्य नहीं है। पेड़ों और प्रजातियों की संख्या छोटे क्षेत्रों में बहुत बड़ी होती है। यानी देखा जाए तो ये बहुत कम छोटे क्षेत्र में बहुत सी प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है। सुगंधित लकड़ियाँ, अबनूस, मेहगानी, रबर, जैक लकड़ी, बांस आदि इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण पेड़ हैं जो उष्ण सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। भारत में देखा जाए इस प्रकार के वन भारी वर्षा वाले क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जैसे पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी हिस्सों में। इन जंगलों की लकड़ी फर्नीचर, हस्तकला आदि में प्रयोग किए जाते हैं और भूस्खलन और भू संरक्षण रोकने के लिए भी ये काफ़ी उपयोगी सिद्ध भी होते हैं। उसके पश्चात है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन वनों के पेड़ अपने पत्तों को वर्ष में एक बार गिराते हैं, यानी इन वनों के पेड़ पौधे जो होते हैं साल में एक बार जरूर गिरा देते हैं। यही कारण कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहा जाता है, क्योंकि ये पनप रही होती है। ये वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र पर फैले हुए हैं और यह वन 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में बहुत आसानी से ये पाए जा सकते हैं। और यहाँ तक इस प्रकार वनों की जो भौतिक वितरण का संबंध है वह दक्कन के पठार, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे भारत में ये पाए जाते हैं। यानी देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है मैक्सिमम क्षेत्रों में पाया जाता है, जो हम मैप के अध्ययन करके भी देख सकते हैं। इन वनों को खेतों के उद्देश्य के लिए मानव द्वारा व्यापक तौर पर उपयोग में लाया गया है। फिर भी प्राकृतिक वनस्पति कुछ क्षेत्र हिमालय की तटहस्ती, प्रायद्वीपीय पठार और देश के मध्यवर्ती भागों के पर्वतीय क्षेत्र के साथ पाए जाते हैं। और वर्षा की उपलब्धता के आधार पर इन वनों की आर्द्र और पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती में विभाजित किया जाता है। यानी आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती विभाजित किया गया है। चलिए देखते हैं आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती क्या होता है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अर्ध पर्णपाती वन। देखिए अर्ध पर्णपाती वन का मतलब होता है 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र में ये बेखूबी पाए जाते हैं। देश के पूर्वी भाग, हिमालय के तटवर्ती झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों के साथ जो पूर्वोत्तर राज्यों में मुख्य रूप में ये पाए जाते हैं। और सागौन, बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन, महुआ, जामुन और सतुत इन वनों के काफ़ी महत्वपूर्ण पेड़ पौधे हैं। तो आप समझ सकते हो कि अर्ध पर्णपाती वन जो है 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में बरसात करती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बात करें हम शुष्क पर्णपाती वन जो कि 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में फैले हुए हैं। वन प्रायद्वीप पठार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के मैदानी क्षेत्र के आंतरिक भागों में पाया जाता है। और इस वनस्पति के पेड़ सलगोन, साल, पीपल और नीम किस्म की प्रजातियां हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उसके पश्चात आता है कटीले वन। देखिए कटीले वन जो है 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर जो देखा जाए बरसात की मात्रा बहुत ही कम होता है। अब देखिए जहाँ पर रेन कम होता है, नाम से भी आपको जगह का समझ में आ गया होगा कि सबसे कम वर्षा किन क्षेत्रों में होता है, तो वही क्षेत्र जो है कटीले वन के रूप में जाने जाएंगे। इसके जो है विशेषताएँ जो है कांटेदार पेड़ और झाड़ियाँ ही पाई जाती है। इस भाग की जलवायु जो है मुख्य रूप से घने वनस्पति का समर्थन नहीं करती है। यानी घने वनस्पति यहाँ पर नहीं मिलते हैं, दूर दराज में इक्का दुक्का ही पेड़ पौधे नज़र आते हैं।
वो जो है मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी भारत, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अर्धशुष्क क्षेत्रों में सहित पूर्वी भारत के आंतरिक भागों में यह पाया जाता है। इस वनों की वनस्पति व्यापक रूप से छोटे पेड़ों और झाड़ियों के रूप में गहरी जड़ों के साथ पाया जाता है। इन वनों की जड़ें जो है जल संरक्षण में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि इनके जड़ें जो होती है बहुत काफ़ी डीप चली जाती है। कारण क्या होता है, इन क्षेत्रों में पानी की बहुत कमी होती है और जड़ें जो है बहुत नीचे जाके पानी अब्जॉर्ब करती है और जिसके कारण जो है वो अपना जीवन बनाए रखती है। इवन की जो पत्तियाँ होती है, पत्तियाँ जो है कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कारण क्या होता है कि कांटे के रूप में परिवर्तन इसलिए होता है कि इससे पानी का जो है वाष्पीकरण कम हो सके। इसलिए देखा गया है कि कैक्टस जो है काफ़ी महत्वपूर्ण पौधा इस क्षेत्र में मिलता है। इसमें सिर्फ कांटे होते हैं और ये जो है क्लोरोफिल जो अपना भोजन बनाती है वो अपने पाठों से बनाती है। और देखा जाए तो अकालिया, बबूल, कैकटिया, खैर, खजूर, ताड़ प्रकार के पेड़ सामान्य रूप से इन क्षेत्रों में पाया जाता है। अब चलिए देखते हैं मैप, और मैप के अध्ययन से जानने की कोशिश करें कि किन क्षेत्रों में कौन सा वनस्पति जो है अपना चरम स्थान रखता है। तो चलिए मैप का अध्ययन करें। यहाँ पर आप भली भांति देख सकते हो कि यहाँ पर जो मैप है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत प्राकृतिक वनस्पति को जहाँ दर्शाया गया है कि भारत में कौन कौन से वनस्पति पाया जाता है। अब ज्वारीय वन देखिए, सदाबहार वनस्पति, उष्णकटिबंधीय वन देखिए, उष्णकटिबंधीय पनपती वन देखिए, कांटेदार वन देखिए, हिमालय वनस्पति यहाँ देखिए। अगर हम बात करें ज्वारीय वन, तो ज्वारीय वन आप देख सकते हो स्क्रीन में किसी किसी क्षेत्र में ही पाया गया है, बहुत ही कम क्षेत्र में जो है ज्वारीय वन। और ज्वारीय वन जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये जो है समुद्र के किनारे हैं, और इवन की मानचित्र में भी आपको दिख रहा होगा कि समुद्र के किनारे ही ज्वारीय वन है, जहाँ पर सदैव ही जो है ज्वार भाटा आता ही रहता है। और देखा जाए तो ये पेड़ पौधे जो होते हैं मैक्सिमम टाइम पानी के अंदर ही होते हैं। यहाँ इवन की जड़ तो होती तना भी जो है पानियों में ही मिलती है और ये पानी के क्षेत्रों में ही पाया जाता है, जैसे मैप में भी दिख रहा है। अगर हम सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन की बात करें तो ये आप देख सकते हो केरला के साइड जो है महाराष्ट्र तक फैली हुई है या कन्याकुमारी नीचे तक फैला हुआ है। इवन कि अगर हम देखा दूसरे क्षेत्रों में देखें, बंगाल की साइड देखें तो वहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन। उसके पश्चात हम देखें तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पूरे भारत में अपना दबदबा बना रखा है, जैसे कि मानचित्र में भी आप देख सकती हो। आप देख सकते हो कि हर एक क्षेत्र में कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, तो आपको जो है इस क्षेत्र को दर्शाने के लिए इतना तकल्लुफ़ करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप देख सकते हो कि भारत के मैक्सिमम क्षेत्रों में जो है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ही नज़र आ रहा है। और एग्जामिनर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछता है। ये जो आप देख रहे हो मानचित्र, इस मानचित्र दर्शाने वाले क्वेश्चन भी वहाँ पर होते हैं, तो ये मानचित्र को आपको अच्छे से अध्ययन करना है। अगर देखिए कटक वन देखिए, कटक वन कहाँ है, अब जनरल कांटेदार वन कहाँ पाया जाएगा, राजस्थान के साइड ही पाया जाएगा, गुजरात के साइड ही पाया जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो है सेंटर में भी पाया गया, इवन महाराष्ट्र के क्षेत्र भी कुछ नज़र आ रहे हैं। तो ये जो है कटीले वन है। इन क्षेत्रों में कटीले वन इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि इनको जो है सारे पौधे जो होते हैं कांटे के रूप में इनके पत्ते कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये इसलिए होता है कि वो जो है वहाँ पर वर्षा उत्सर्जन को बचाया जा सके, यानी जब धूप पड़ती है तो इनके पौधों में पानी का हर्ष ना हो। अगर पानी का हर्ष होगा तो ये पौधे बहुत आसानी से जो है सूख जाएंगे, क्योंकि इन क्षेत्रों में पानी की बहुत अभाव होती है और इनके जड़ें भी जो होती है बहुत काफ़ी डीप चली जाती है। अगर हम हिमालय वनस्पति की बात करें तो आप देख सकते हो हिमालय जैसे नाम से ही आपको लग रहा है कि हिमालय क्षेत्र में ही नज़र आएगा, और हिमालय क्षेत्र में ही नज़र आ रहा है। तो ये एग्ज़ाम में आपको दर्शाने के लिए इतना मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप मानचित्र समझ लेते हो तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन से जो है पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकती हो। तो मैप आपको समझ में आ गया होगा, ये मेरा विश्वास है, और ये शायद आप भूलोगे भी नहीं। चलिए आगे टॉपिक हम बढ़ाते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है ज्वारीय वन। जैसे नाम से ही आपको पता है कि ज्वारीय क्षेत्र में होता है। कहते हैं नाम से ही साफ है कि ये वन ज्वार और आर्द्रभूमि असलकृति जो है प्रभावित दलदली जार खाड़िया में पाए जाते हैं, और इस क्षेत्र की विशेषता है मिट्टी गाढ़, यानी मिट्टी की गाढ़ होती है, कीचड़ होती है, और पानी धरातल पर जमे हुए सदैव रहते हैं। जड़ें और पेड़ की शाखाएं विशिष्ट अवधि के लिए जो है जलमग्न रहता है, यानी ये पेड़ पानी में ही डूबा हुआ रहता है। इन्हें मैंग्रोव वन भी कहा जा सकता है।
मैंग्रोव वन के नाम से भी इसको जानते हैं, यानी आपको ज्वारीय वन आ जाए तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैंग्रोव वन के नाम से भी इसको जानते हैं हम। मैंग्रोव व्यावहारिक रूप से मोटी पत्तियों और साथ सदाबहार वन रहते हैं। वनों की इस प्रकार को हम सुंदर वन भी कहते हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाओं में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये पाए जाते हैं। मैंग्रोव या सुंदरी वृक्ष जो है सुंदर वन में अधिकांश पाए जाते हैं, यानी मैंग्रोव और सुंदरी जो है वृक्ष इन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। जबकि तार, नारियल, केवड़ा और अगर अन्य जो है महत्वपूर्ण ज्वारीय वनों की प्रजातियां भी नजर आती है। और यह दिलचस्प है कि इस प्रकार वन बड़े पैमानों पर वज्र के दोहन से दूर पाए जाते हैं, यानी इसका जो है हम उपयोग कम से कम ही कर पाते हैं, क्योंकि ये वने जो है अभी भी संरक्षित ही है, क्योंकि वहाँ से जो है बहुत काफ़ी जो है व्यापार करना मुश्किल पड़ जाता है। और यह वन तटों के सहारे स्थित है और ये चक्रवात के खिलाफ संरक्षण प्रदान करते हैं। देखिए कितना महत्वपूर्ण है, जो चक्रवात से इंसान लड़ नहीं सकता उससे जो है पेड़ पौधे बहुत ही आसानी से लड़ सकते हैं और इंसानों को बचा सकते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है हिमालय वनस्पति। देखिए जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि यह वन मुख्य रूप से हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। तापमान घटने और ऊंचाई बढ़ने के साथ विभिन्न प्रकार के वनस्पतियां पहाड़ी ढालों और जो है प्राप्त सूर्य किरणों जैसे कारकों पर निर्भर करता है। परिस्थिति तंत्र अत्यधिक जो है नाजुक होते हैं और हाल के दशकों में कई तरीकों से हिमालय के वनों का शोषण किया गया है। तो ये कहते हैं इंसान जितना आज तरक्की कर रहा है उतना ही प्राकृतिक का जो है दोहन भी कर रहा है। अपेक्षाकृत कम ऊंचाई 1000 मीटर तक जो है गर्म जलवायु और वर्षा की मात्रा इन क्षेत्रों में घने वनस्पति की विशेषता होती है। और देखा जाए तो ये वन उष्णकटिबंधीय वन की तरह ही लगते हैं। ये जो वन है उष्णकटिबंधीय वन की तरह ही लगते हैं और इन क्षेत्रों में साल और बांस मुख्य प्रजातियां हैं, यानी साल और बांस जो है इसके प्रमुख प्रजातियां हैं। और देखा जाए तो 100 से जो है 200 मीटर की ऊंचाई के बीच सदाबहार चौड़ी पत्तियां वाले इन वनों ओक और जो है चेस्टनट पाई वाली प्रजातियां हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पूर्वी हिमालय में एक ही ऊंचाई उष्णकटिबंधीय जो है पाइन वनों के लिए घिरा हुआ है और एक हिस्से में आमतौर पर चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। हिमालय में अर्धशीतोष्ण वन जो है 1500 से लेके 3500 की ऊंचाई पर जो है 100 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में ये बेखूबी पाया जाता है। और इसमें ओक, आर्लेस, चेस्टनट, देवदार, सीडर और सिल्वर स्पूल एक प्रकार के फल आदि हिमालय पर पाया जाता है। यहाँ के वन व्यापक रूप से फर्नीचर के लिए शोषण किया जाता है, यानी फर्नीचर बनाने के लिए इन वनों का जो है बेखूबी दोहन किया जाता है। हिमालय में पाई जाने वाली वनस्पति का अंतिम प्रकार जो है अल्पाइन वनस्पति है, जो बड़े और व्यापक जो है उच्च भूमि चरगाह और दूर दूर तक फैले पाइन, बर्च और सिल्वर, देवदार और एक प्रकार का फल जो पेड़ के साथ जो 3000 से के बीच जो है 3800 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इन क्षेत्रों में देखा जाए तो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण पेड़ पौधे मिलते हैं और इवन कि हमारे दैनिक जीवन में इन्हीं पेड़ पौधे का जो है दोहन किया जाता है, यानी लोग जो है व्यापार करने के लिए इन्हीं पेड़ पौधों का बखूबी उपयोग करते हैं। The next topic is the most important here, wildlife in India. There is the most important wildlife in India. You will study earlier in the lesson that due to the unique geographical position, India is rich in the wildlife. Wildlife of India is a great natural heritage. It is estimated that about the 80% of all now plant and animal species on the earth are found in India. Many plants synthesize a substance that are useful to the maintenance of health in a human and other animals. In addition, is a human encouragement that pose a threat to India as a wildlife. In response to this, the system of national park, wildlife sanctuaries and protected area, first established in 1935, has substantially expanded through the Wildlife Protection Act 1972. Efforts are being made to be protect and preserve the biological diversity of our country under various programs. India has preserved a vast tract of the natural habitats, birds and plants in its 551 wildlife sanctuaries and 96 national parks and 25 wetlands and
15 biosphere reserve spread almost all state of India. And besides this, there are 33 botanical garden and 275 zoological park, deer park, safari park, aquarium, etc. There is the most important for the exam view. On their competition also view. There are 551 wildlife sanctuary, 96 national park, 25 wetland, and 15 biosphere reservation spread almost all the state of India. And 33 is a botanical garden and 275 zoological park. The important and also deer park, safari park, aquarium, etc. To make a people aware conservation of threatened and endangered wildlife species in their respective area. In India, for the purpose of effective conservation of natural habitat of wildlife, special achievements like a Project Tiger 1973 and Project of Air Elephant 1992 has been to be launched, and these are the very important as many species area at the brink of extinctions. However, none of this effort will be truly successfully unless all India recognize their role in the conserving of biodiversity. The next year, wildlife sanctuaries. Wildlife sanctuaries, the main objective of the wildlife sanctuaries is the ensure maintenance of the viable population of wildlife and there is a desired habits. And the wildlife sanctuaries in India are home to be around 2,000 different species of bird and 3,500 species of mammals, and nearly 30,000 different kind of insect and more than 15,000 variety of plants. And these sanctuaries as and the forest reserve are home to be several endangered species of animal and birds like Asiatic elephant, the Royal Bengal tiger, the snow leopards, and the Siberian crane. Many of the forest reserve and the wildlife sanctuaries of India are famous for a particular species of animals. For instance, the Kaziranga in Assam. Kaziranga in the Assam is known as for the Indian rhinoceros. Periyars in the Keras is famous for its elephant. India is also home to be several migrated animal and birds like olivers, rattles, sea turtles, Siberians, Karens, and flamingo. That is the most important here. The next year, national park. National park, this purpose of establishing a national park is to be conserved. There is a natural and historical object and their wildlife and to provide for the enjoyment of the same in such a manner. And by such a mean as will we leave them is unpaired for the enjoyment of the future generation. By 1960, India only had a 5 national park. In 1972, India is enacted the Wildlife Protection Act to be safeguard the habitats of the conservation relevant of species. The two main objectives of the act are there to be provide protection to the endangered species are listed in the act and to be provide support to be conservation area of country classified as a national park. Let's see the table. The most important rare species of animal found in the national park. There is the most important. Dachi Gram is Jammu and Kashmir. Hangul marks deer, the rare species of animal protected. And Corvette, Uttarakhand, the tiger, elephant, panther, deer. And Duhad Dawa is a UP. The elephants and tigers are protection here. And Kanha is a MP. There is a tiger and Barasingha. And Badipur is a Karnataka, tiger and Barasingha. The next year, the Bharatpur is Rajasthan. The different types of water wards is a protection. And Desert Park Rajasthan is a desert wolf and fox. And Gir is a Gujarat. There's a lion, panther, and cheetah. And Kaniranga Assam, the rhino and wild buffalo. And the Manasida Assam is elephant, rhino, and wild buffalo. Namzadaf is Arunachal Pradesh is a protection here, tiger, goat, and wild buffalo.
Sundarban, the West Bengal, that is the most important for Royal Bengal tiger. On your screen, there is the most important map show here, the Indian Wildlife Reserve. There is the most important. The dot here, Wildlife Sanctuary. The Wildlife Sanctuary on your screen, there is a maximum area. Rajaji, Corvez, Bansa, Lodhava means more important area I show here. And the next year, the triangle shape, a bird sanctuary. Bird sanctuary is found almost a three area only. There is a most important area, Bharatpura, and there is here Ranga, Thurthus, and there is other is next year. Madhuvalai. There is the most important only three side found of the bird sanctuary. And the national park almost a maximum. There's a Gir, Rajdevara, is a Sivapuris, and the Kanha, Khilasi, and the Todova. They are the most important area found here. There are wildlife sanctuary on your screen. The next year, a wetland. A wetland is area of land where the soil is saturated with the moisture. You know that wetland, there is a soil is saturated with the moisture, either permanently or seasonally. There is a permanently or seasonally. Such areas may be also be converted particularly completely by shallow is a pool of water. Shallow is a pool of water, and wetland include to the swamps, marshes, and bogs among other. The water found in the wetland can be salty water, fresh water, and brackish. Most importantly, wetland also is serve as a natural waste water and purification system. Wetlands are considered as a biological the most diverse the all ecosystem. Plant life found in the wetland include mangrove, water lilies, and cattleys as sedges and tamaracks and black spruces and cypress, gums, and many others here. The animal life include many different amphibian, reptiles, bird, insect, and mammals also here. The wetland perform a two important functions in the relation to the climate change. They have a mitigation effect through their ability to sink carbon and absorption effect there thought there is ability to store and regulate water. The Convention on Wetland of International Important Ramsar Convention is the international treaty as a designed to be address a global concern and regarding to the wetland loss of degradation. The primary purpose of their threat is to be list a wetland of international importance and to be promote there is a wish use with the ultimate goals of preserving their worlds. Wetlands and method include restricting access to be majority protections of wetland area as well as the educating the public to be combat the microspecies that wetland or wasteland. On your screen, there is a most important wetland in India. There is a wetland, Astamadi is the Kerala. The area is 614. And Vitar Kalinga is mangrove, is the Odisha. Chilaka is a lake, is Odisha. East Kolkata wetland is the West Bengal. Colorius Lake is Andhra Pradesh. And Kotex Lake is a Manipur. And Point Calamars is the Tamil Nadu. And the next year, Pong Dam Lake is the Himachal Pradesh, Sambhar Lake is the Rajasthan, and Tosomoris is the Jammu and Kashmir. Upper Ganga Canal is Uttar Pradesh, Bimbam, Coal Wetland is the Kerala, and the Mullers Lake is the Jammu and Kashmir, Harikesh Lake is the Punjab, Bhoj Wetland is the Madhya Pradesh. They are most important wetland found in India. The next year, Biosphere Reserve. This is the most important Biosphere Reserve here. Biosphere Reserve are the multi-purpose protected area to preserve their genetical diversity in representative ecosystem. The Indian government has established 15 Biosphere Reserves, which protect a large area of natural habitat and then the National Park on Wildlife Sanctuary.
and often include one or more national park and are the preserves along a buffer zone that are open to be some economical uses. Protection is there is a granted not only to be a flora and fauna of the protected region, but also to be human communities is who inhabited this region. The main objectives to be established them are to be conserve our diversity and integrated of the life of plants, animals and macroorganisms. To promote a eco-friendly, sustainable life in this area and to promote ecological conservation research, education, awareness and training in the life such a area. That is the most important. Important on your screen there is a map. On your screen, there's the most important Indian Biosphere Reserve. There are Biosphere Reserve here, Nanda Devi, this is important, and Panchamaharis, and the Achapakamar, and the Simhalapal, and Sundarban, Manas, Dibru, Sakhalwar. There is important of there is a Biosphere Reserves on India. There is a most important table biosphere reserve here. First of all, Nilgiri, Tamil Nadu, Kerala and Karnataka. And Gulf of Manners is a Tamil Nadu, Sundarban is a West Bengal, Nanda Devi is Uttarakhand, and Dibang is the Arunachal Pradesh, Pachumarchi is the Madhya Pradesh, and Simlipal is Odisha. And Achaman Kamar and Amar Kantak, they are Madhya Pradesh and Chhattisgarh. And the next year, Manas is the Assam and Kanchenjunga is the Sikkim and Agasthamala is the Kerala and Great Nicobar is Andaman Nicobar Island. Korkerek is a Meghalaya and Dibru Siva Kovala is Assam. Rana of the Kacha is the Gujarat. The Kutch is Gujarat here. Rana of Kutch Gujarat. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण भारत में वन जीवन। देखिए भारत में वन जीवन का अपना एक महत्व है। कहते हैं आप पहले ही पाठों में अध्ययन कर चुके हैं कि आपने अनोखी जो भौगोलिक स्थिति के कारण भारत में जो है वन्य जीवन समृद्ध है, क्योंकि भारत में जो है वन्य जीवन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारतीय वन जीवन एक महान प्राकृतिक विरासत है और यह अनुमान है कि सभी ज्ञात पृथ्वी में पौधे और जानवरों की प्रजातियों में 80% भारत में ही पाए जाते हैं और कई पौधे संश्लेषित पदार्थ मानव और अन्य जानवरों में स्वास्थ्य के रखरखाव के लिए उपयोगी भी सिद्ध हुए हैं। हाल के दशकों में मानव अतिक्रमण के कारण भारत के वन जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है, क्योंकि देखा जाए तो हाल के दिन में जो अपने आप को लोगों ने मॉडलाइज कर लिया है, मॉडल जमाने में आ गए हैं। कहते हैं वन्य जीवन का उन्होंने बहुत ही बुरी तरह से दोहन किया है और इसका जो है वन्य जीवन में बहुत ही बुरा असर पड़ा है। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय पार्क यानी राष्ट्रीय पार्क वन जीव अभयारण्यों और संरक्षित क्षेत्रों को विकसित किया गया है। कहते हैं बहुत सरकार के द्वारा जो है पार्क बनाए गए हैं जिनको संरक्षण के क्षेत्र में रखे गए हैं। वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा वन जीवन का संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रावधान का विस्तार किया गया है। हालांकि देखा जाए प्रावधान विस्तार किया गया, हालांकि विभिन्न कार्यक्रम के तहत हमारे देश में जैविक विविधता को संरक्षण बचाव के प्रयास भी काफ़ी किए जा रहे हैं। भारत में प्राकृतिक कहते निवास के विशाल क्षेत्र में संरक्षित पौधे और पक्षियों के लिए 551 वन जीवन अभयारण्य हैं और देखा जाए तो 96 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 25 झीलें हैं और 15 जैव आरक्षित क्षेत्र भारत के लगभग सभी राज्यों में फैले हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ 33 जो है बोटेनिकल गार्डन है और 375 प्राणी उद्यान है। जैसे कि अगर देखा जाए तो हिरन पार्क, सफारी पार्क, एक्वेरिया आदि बहुत पाए जाते हैं और क्षेत्रों में विलुप्त प्राय वन जीवन प्रजातियों के संरक्षण के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए भी बनाया गया है। कहते हैं सरकार के द्वारा बहुत से प्रयास किए गए हैं, लेकिन ये प्रयास सफलता की चोटी पर नहीं पहुंच पाया। कारण क्या है? सरकार तो हर संभव कोशिश करती है, लेकिन ये कोशिश सरकार के द्वारा थोड़ी होती है। सरकार के विभाग में जो लगे हुए व्यक्ति वो करते हैं, लेकिन उनको क्या, उनको तो एक बार जॉब सरकारी मिल जाए, आराम से कुर्सी पे बैठना है। वन जीवन को कौन देखता है?
कहते हैं आज देखा जाए तो बहुत से क्षेत्रों में वनों का जो है विनाश किया जा रहा है, जीव जंतु को मारा जा रहा है, कोई तरह के किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। सरकार ने बेशकली यहाँ पर आंकड़े अच्छे लगा दिए हैं कि 551 वन जीवन अभयारण्य है। कई बार यूपीएससी एग्जाम में भी क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चे भी वहाँ पर बड़े है सुंदरता से जवाब देते हैं। लेकिन वो बच्चे जब आईपीएस बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, फिर कहते हैं चल वन जीवन को कौन देखता है, अभी तो हमें अच्छे से अपना रास्ता साफ करने हैं, पैसे के रास्ते बनाने हैं। क्योंकि देखा जाए तो ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी एग्ज़ाम में ही पूछे जाते हैं, और जो यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करते हैं बच्चे वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और उनको हर बात का ज्ञान होता है। लेकिन मैं ये बात नहीं समझ पाता हूँ कि जब वो पद प्राप्त कर लेते हैं तो कहाँ पर उनकी इंसानियत चली जाती है। कहते हैं इक्का दुक्का ही आईपीएस अफसरों का जो है पूरे देश में चर्चा होती है, बाकी देखा जाए तो हर साल इतने सारे बनते हैं और यही क्वेश्चनों से गुजरते हैं, यही प्रश्नों से गुजरते हैं और यही तकलीफ़ों से भी गुजरते हैं। फिर भी एक बार जब वो पद ग्रहण कर लेते हैं तो वो सिर्फ एक ही उनका सब कुछ बन जाता है, पैसा, सिर्फ पैसे। आखिर ऐसा क्यों? ये बहुत मैं हैरान होता हूँ कि विद्यार्थी लोग भी जब पढ़ाई करते हैं तो यही सब किताबों में लिखी गई बातें होती है, जब वन जीवन, उसके संरक्षण, उनको कैसे हम बचाएं। लेकिन ये विद्यार्थी जब अच्छे अच्छे पोस्ट प्राप्त कर लेते हैं, कोई मंत्री बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, तो उनके जीवन में इनके संरक्षण के लिए कोई स्थान नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों? कहते हैं ये लोग इसीलिए आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है कि ये वन जीवन की संरक्षण कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन जब ये बन जाते हैं फिर दोबारा क्यों नहीं इन जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए कदम उठाते हैं? क्यों न कुछ ऐसा कदम उठाते हैं जो लोग भी समझ जाएं कि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो सिर्फ यही देखने में नज़र आया है कि सिर्फ कोई बन जाता है, उसके बाद कभी भी वो छोटे जगहों पर नहीं जाता है। कभी जाता है कोई चीज़ को देखने के लिए। बड़े बड़े मिनिस्टर लोगों को मैंने देखा है कि कोई क्षेत्र में कहीं जाते हैं तो उनके रास्ते बड़े साफ़ कर दिए जाते हैं, वहाँ पर गंदगी हटा दिए जाते हैं, पेड़ पौधों को साफ़ कर दिया जाता है। कहीं कोई मिनिस्टर जी को, कोई आईपीएस अफसर को कोई हल्का सा भी ऊंच नीच की वो ना आ जाए। तो ऐसा क्यों? क्या वो भली भांति नहीं जानते हैं जब वो आईपीएस नहीं थे, जब वो मंत्री नहीं थे, तो वो भी उसी रास्तों से गुजरा करते थे और उनको भी दिखता था। लेकिन जैसे वो बड़े बन गए वैसे ही उनके लिए सब कुछ साफ़ कर दिया। क्या उन्होंने कभी इस बात को ध्यान नहीं दिया कि ये अभी अभी साफ़ किया गया है, आप इतने दिनों से क्या कर रहे थे? क्या ऐसे जंगल बना रखे थे यहाँ पर? मैं इस बात से सदैव हैरान रहता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों कि जिस रास्ते से सभी बड़े बन जाते हैं उसी रास्तों को सब भूल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत से उदाहरण बनाए गए हैं जो बड़े बड़े क्वेश्चन जो है बड़े बड़े कॉम्पिटिशनों में भी पूछे जाते हैं। कहते हैं 275 प्राणी उद्यान, हिरण पार्क, सफारी पार्क, एक्वेरियम आदि अपने संबंधित क्षेत्रों में विलुप्त प्राय वन जीव और प्रजातियों के संरक्षण के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए बनाया गया है। भारत में वन जीवन के प्राकृतिक विनाश के प्रभावी संरक्षण उद्देश्य के लिए विशेष परियोजना बनाया गया है। अब देखिए कहते हैं प्राकृतिक विनाश के प्रभावी संरक्षण के लिए 1993 में बनाया गया था बाघ परियोजना और 1992 में हाथी के लिए विशेष परियोजना शुरू की गई थी। ठीक है, यानी सभी जीव जंतु के लिए हर एक परियोजना तैयार की गई है, लेकिन सब के सब विलुप्त होने के कगार पे आ चुकी हैं। ये जानना अति महत्वपूर्ण है कि कुछ प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं, इसलिए इन प्रयासों की सफलता अभी संभव है जब हर भारतीय जैव विविधता संरक्षण में अपनी भूमिका अदा करे। यानी देखा जाए तो हर लोगों को जो है अपना जो है रूल रेगुलेशन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। उसके पश्चात आता है वन्य जीवन जो है अभयारण्य, यानी वनस्पति अभयारण्य के मुख्य उद्देश्य वन जीवन के व्यवहार, आबादी और अपने वांछनीय वास के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए है। भारत वन जीवन अभयारण्य लगभग 2000 पक्षी स्तनधारियों के जो है 3500 प्रजाति और कीड़ों की लगभग 30,000 पौधे और 15,000 जो है किस्मों के घर हैं। आप समझ सकते हो कि पौधों के जितना 15,000 किस्में हैं और कीड़ों की लगभग 30,000 प्रजातियां हैं। इन अभयारण्यों के वन क्षेत्रों में एशियाई हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर, तेंदुआ, साइबेरिया और क्रेन कई तरह के विलुप्त जानवरों और पक्षियों को प्रजातियों के विनाश करती है। भारत के वन्य जीवन अभयारण्य कई जानवरों की कुछ विशेष प्रजातियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। उदाहरण के लिए असम में काजीरंगा जो है भारतीय गेंडा के लिए जाना जाता है,
जबकि केरल में पेरियार उसके हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और भारत में 551 वन जीव अभयारण्य हैं। और भारत में कई प्रवासी पशुओं और जो है एल्यूवियो, रिडोल्स, समुद्री कछुआ, साइबेरियंस, क्रेन और राजहंस की तरह पक्षियों का घर भी है। तो देखा जाए बहुत चीज़ों के लिए जो है भारत महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है नेशनल पार्क। देखिए, नेशनल पार्क राष्ट्रीय पार्क स्थापना का उद्देश्य प्राकृतिक और ऐतिहासिक वस्तुओं और वन्य जीवन संरक्षण करने का है। सभी चीज़ों का जो है यही उद्देश्य होता है कि वन्य जीवन संरक्षण। अगर मान लीजिए कोई आईपीएस में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर आपको वन संरक्षण, कोई जीव अगर विलुप्त के कगार पे है तो आप क्या संरक्षण करने के लिए कीजिएगा, तो आईपीएस के जो स्टूडेंट होगा बड़ी ही सफलतापूर्वक उसका आंसर देगा, बहुत ही चतुराई भरा आंसर देगा। लेकिन जैसे वो आईपीएस बन जाएगा, वो जो आंसर दिया था उसका एक बात भी वो पूरा नहीं करेगा, क्योंकि कहते हैं संरक्षण करना शायद इन लोगों को है ही नहीं बात इनमें, तो कहाँ से कर पाएंगे संरक्षण। मैं तो कहता हूँ आप इतने बड़े अफसर हो, इतने अच्छे से कर सकते हो, तो क्यों नहीं आप लोग कहते हैं वन जीवन के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठा रहे हो। कहते दिखावा नहीं करना है, कुछ करके देखिए, कुछ जानिए, तब जाने कि आपने पर्यावरण के लिए क्या किया और क्या पाया। कहते हैं इस बहुत ही नुकसान पहुँचाया गया है। और 1970 में भारत में केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, जो 1972 में भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम विलुप्त प्रजातियों को संरक्षण देने के लिए की गई थी। और इस अधिनियम के 2 मुख्य उद्देश्य थे: विलुप्त प्रजातियों के अधिनियम को सुबंधित सुरक्षा प्रदान करना और राष्ट्रीय पार्क के रूप में वर्गीकृत देश के संरक्षण क्षेत्रों में कानूनी समर्थन प्रदान करना। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कानूनी समर्थन तो मिलती है लेकिन इसको लागू नहीं किया जाता। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है राष्ट्रीय पार्क में पाए जाने वाले दुर्लभ प्रजाति। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन से दुर्लभ प्रजाति है जो अब खत्म होने के कगार पे हैं। आप देखिए दाची ग्राम जम्मू कश्मीर में देखिएगा तो हुंगुल माघ सीजन खत्म होने के कगार पे दुर्लभ हो चुके हैं। कावोट उत्तराखंड में जो है बाघ, हाथी, पैंथर, हिरन खत्म होने के कगार पे आ चुके हैं। दुधवा जो है उत्तर प्रदेश में जो है बाघ, हाथी खत्म होने के कगार पे हैं। कान्हा जो मध्य प्रदेश में है बाघ और बारहसिंघा के जो है दुर्लभ प्रजातियों के अंतर्गत आता है। उसके पश्चात आता है बंदीपुर कर्नाटक, जिसमें बाघ, बड़िघाल जो है संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्गत आता है। वहीं परियार केरल जो है हाथी के लिए जाना जाता है। भरतपुर राजस्थान में जो है विभिन्न प्रकार के जलीय पक्षी के लिए जाना जाता है। मरुस्थलीय पार्क राजस्थान जो है मरुस्थलीय भेड़ और लोमड़ी के लिए जाना जाता है, ठीक है। और गिर गुजरात जो है शेर, पैंथर, चीता के लिए जाना जाता है। और काजीरंगा असम जो है गेंडा, जंगली भैंस के लिए जाना जाता है। वही मानस देखें तो असम में हाथी, पेंडे और जंगली भैंसों के लिए आरक्षित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। उसके पश्चात आता है मेदाफा जो अरुणाचल प्रदेश में है, बाघ, गेंडा, जंगली भैंसों जो कि विलुप्त स्थान है। सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल, जहां रॉयल बंगाल शेर जो है खतरे के कगार पे खड़ा हो रखा है, जिसका कोई आज जो संरक्षण करना इतना संभव नहीं रह गया है। यहाँ पर आपके समक्ष जो मैप आया है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में वन्य जीवन अभयारण्य काफ़ी जरूरी है, काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। देखिए यहाँ पर जो डॉट दर्शाया गया है वन्य जीवन अभयारण्य दिखाया गया है और ये काफ़ी है, चाहे दादी गंजाउत जम्मू कश्मीर साइड दिख रहा होगा, राजा जी है, उसका करोबोट है, बनवासा है, वही महामनद है, गोरुमारा है, मानस है, काजीरंगा है, चचुकोका है, पिराराम है, कब्बल है, सरिका, भरतपुर, रणथंभोर, ठीक है, वहीं बांदीपुर, काफ़ी जगह दिखाया गया है। लेकिन पक्षी अभयारण्य जो है कुछ 3 ही क्षेत्र में दिख रहे होंगे। एक तो है रन गाथी टूटू में और एक इधर साइड आपको दिख रहा होगा और एक जो है आपको भरतपुर के साइड है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं आप देख सकते हो कि रेक्टेंगल्स जो बनी हुई है राष्ट्रीय उद्यान के लिए है, जो कि कन्हा किसली है, कन्हौरी है, गिर है, दोबा है, तो काफ़ी क्षेत्र जो है सिलाबूपुरी भी है इसी के अंदर, आसिम पिपला भी है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारे जो है वन्य जीवन अभयारण्य क्षेत्र है जो हर एक जीव जंतु को संरक्षण प्रदान करने के लिए अग्रसर है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है आर्द्रभूमियाँ। देखिए आर्द्रभूमि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आर्द्रभूमि जो है भूमि की जो है मिट्टी नमी के साथ या तो अस्थायी रूप से या ऋतुओं जो है संतृप्त के अनुसार एक क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्र पानी के उथले तालाब द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से घिरा रहता है। कहते हैं झीलों, दलदल, एवोल और दूसरे जो है बीच में है शामिल होते हैं। झीलों में पाए जाने वाला खारा पानी ताज़ा पानी हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण झील भी प्राकृतिक उपशिष्ट जल शोधन प्रणाली के रूप में सेवा करता है
और जो है भूमियाँ जैविक रूप से पारिस्थितिक प्रणालियों के विविध रूपों में माना जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पौधे का जीवन झीलों में पाए जाने वाला सदाबहार पानी लिली, कैक्टस में सेमरोटेक्स और कारेसबुर जो है प्राइसप्रेस और गोंद और कई अन्य शामिल हैं इसके अंतर्गत। और कहते हैं पशु जीवन में कई अलग अलग उभयचर जो है सरीसृप, पक्षी, कीड़े और स्तनधारी शामिल होते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है अपना स्थान। वही बात करें हम आंध्र भूमियाँ जलवायु परिवर्तन के संबंध में दो महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। उनके पास पानी के नियंत्रण करने और भंडारण करने की क्षमता के माध्यम से कार्बन और अनुकूल के प्रभाव को अवशोषित करने की क्षमता को प्रभाव का बचाव है। और अर्धभूमि पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व या रामसर समझौता और अर्धभूमियों पर समझौता जो है वैश्विक अर्धभूमि नुकसान और जो निम्नीकरण के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए डिजाइन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। और संधि का प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय महत्व को जो है अर्धभूमियों की सूची तैयार करना है। संसार के अर्धभूमियों के संरक्षण के अंतिम लक्ष्य के साथ जो है बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग को बढ़ावा देना भी है। कहते विभिन्न विधियों द्वारा जो है अर्धभूमि क्षेत्रों को अधिकांश भाग को जो है उपयोग और जो है सीमित करना है और जनता को शिक्षित करके भ्रम दूर करना है जो भूमि बर्बाद भूमि नहीं है। तो ये बात तो है कि जनता को शिक्षित करने की आवश्यकता है। जब तक जनता अच्छे से पढ़ेगी नहीं, समझेगी नहीं, इन चीज़ों का जो है संरक्षण करना संभव नहीं है, क्योंकि सरकार हर चीज़ नहीं कर सकती है, हर चीज़ों के लिए अग्रसर नहीं हो सकती है। इसलिए जनता को इस बात को समझने की आवश्यकता रहेगी। अब देखिए हमारे समक्ष आया भारत का अर्धभूमियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। अष्टामुंडी देखिए केरल में जो है 614 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उसी तरह से भीतर कनिका मैंग्रोव जो है उड़ीसा में है। चिल्का झील जो है उड़ीसा में ही है। और पूर्वी कोलकाता जो है अर्धभूमियाँ जो है पश्चिम बंगाल में है। वहीं कलरू जो है झील जो है आंध्र प्रदेश में है। और लोकतक झील जो है मणिपुर में है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं पर देखें तो पॉइंट कालीमर जो है तमिलनाडु में है और ये जो 385 क्षेत्रफल फैला हुआ है। पोन डैम झील जो है हिमाचल प्रदेश में है। संभर झील जो है राजस्थान में है। और सोमोगिरी जो है जम्मू और कश्मीर में है। ऊपरी गंगा नहर जो है उत्तर प्रदेश में है। और बिनव कोल्स अर्धभूमि जो है केरल में है। जो है बुलेट झील जो है जम्मू और कश्मीर में है। हरेक झील जो है पंजाब में है। और भोज अर्धभूमि जो है मध्य प्रदेश में है, तो जो कि 32 किलोमीटर तक फैला हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण सारे झील है जो काफ़ी क्षेत्रों में ये फैले हुए हैं। अगला टॉपिक जो हमारे समक्ष आया है जैव आरक्षित क्षेत्र। कहते हैं जीव मंडल सुरक्षा बहुउद्देशीय आरक्षित क्षेत्रों के पारित तंत्र प्रतिनिधित्व में आनुवांशिक विविधता को संरक्षित कर रहे हैं। भारत सरकार ने 15 जो है जीव मंडल सुरक्षा स्थापित की है, जो कि एक बड़े प्राकृतिक निवास स्थान है। एक राष्ट्रीय पार्क या वन्य जीवन अभयारण्य से और प्रायः एक या एक से अधिक राष्ट्रीय पार्क और या अनाथ क्षेत्र हैं और वे कुछ आर्थिक उपयोग के लिए खुले हुए रहते हैं। संरक्षण न केवल आरक्षित क्षेत्र की वनस्पतियों और जानवरों के लिए प्रदान करता है, बल्कि यह भी मानव समुदाय के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि इन क्षेत्रों में रहते हैं और उनके अनुसार जीवन बिताते हैं। इन्होंने स्थापित करने के उद्देश्य भी होते हैं। कहते पौधे, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के जीवन की विविधता और अखंडता संरक्षित होती है। कहते हैं क्षेत्रों में पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ जीवन को बढ़ावा देने के लिए और पारिस्थितिक संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान, शिक्षा, जागरूकता और ऐसे क्षेत्रों में जीवन जीने का जो है प्रशिक्षण भी दी गई, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चलिए देखते हैं जैव आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत मैप। अब यहाँ पर आपके समक्ष जो मैप आया आप देख सकते हो कि भारत के जैव आरक्षित क्षेत्र, तो नदा देवी हो गया, पंचमंडी हो गया, अचनाकमार हो गया, सुंदरबन हो गया, सिमलीपल हो गया, मानस हो गया, डिब्रू, काफ़ी क्षेत्र में इंपॉर्टेंट है जैव आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये इंपॉर्टेंट क्षेत्र जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मैप के अंतर्गत, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए हम यही बात करते हैं जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र का, तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ नाम दिया गया है और यहाँ पर राज्य दिया गया है। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है नीलगिरी। नीलगिरी जो है तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में है। नीलगिरी तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में है। वही मीनार की खाड़ी जो है तमिलनाडु में है। वहीं सुंदरबन देखें तो पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी जो है उत्तराखंड में है। दिबांग जो है अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात बात करें तो पंचमंडी है, मध्य प्रदेश में है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। वही
सिंपली पल तो देखे जो उड़ीसा में है, और देखिए अचना कमार जो है अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, यानी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं मानस देखे तो असम में है, कचजंगा जो है सिक्किम में है, अगस्थमाला जो है केरल में है, और ग्रेट निकोबार जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। वही नोकरेक जो है मेघालय में है, और डिब्रू सिलोबा जो है असम में है। वहीं कच्छ का रण की बात करें तो ये कच्छ का रण जो है गुजरात में है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातों की ओर दर्शा रहा है, जो कि बहुत काफ़ी ज़रूर है एग्ज़ाम व्यू से। तो आप इसको अच्छे से कीजिए, समझिए और अच्छे से जो है अंक प्राप्त कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके साथ हमारा टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो आपका भी जो है एक फ़र्ज़ बन जाता है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। देखिए दोस्तों, कहते हैं शेयर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो विचार आपने ग्रहण किया है वो विचार दूसरों तक भी मिले, दूसरों को भी प्राप्त हो, क्योंकि त्रिपाण संग्रह इतना विस्तृत नहीं है और ये आप बना सकते हो अपने शेयर के एक बटन दबा के। ठीक है, और जितना हो सके इसको शेयर कर कीजिए। पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य सेव कर लीजिए, क्योंकि जब ये टॉपिक आपको समझ में आ गया तो आने वाला टॉपिक भी आपको लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको बहुत से टॉपिक मिलेंगे जो कि इसके प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है। यहाँ पर सारे सिलेबस जो है 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, त्रिपाण स्टडी सेंटर को जो है अपने मोबाइल में सब्सक्राइब करके सेव कीजिए।